Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 173 of Criminal Procedure Code 1973. That is dealing with the concept of police report, charge sheet. What will be the provision relating to the charge sheet and police report? What will be the procedure to file a charge sheet? What will be the circumstances? We will discuss under this particular lecture. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा सेक्शन 173 और सेक्शन 174 सीआरपीसी का, जो डील करता है चार्जशीट से या पुलिस रिपोर्ट हम जिसको कहेंगे। कि क्या प्रोसीजर रहेगा चार्जशीट का, ये सब आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Investigation by police, charge sheet we will discuss. So the provision regarding the report of police officer on completion of investigation are contained in section 173 of CRPC. So whenever police officer completed his investigation, he will submit a police report under section 173 and this report is also called as a चार्ज शीट। तो जब कभी भी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है वो सेक्शन 173 में करती है, उसी को हम चार्ज शीट भी कहते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अ केस कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन टू वेज। सो व्हेनेवर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड द केस इज डिस्पोज्ड इन टू वेज। तो दो तरीके से केस डिस्पोज होती है। द फर्स्ट वन इज बाय सबमिशन ऑफ चार्ज शीट, दैट इज फॉरवर्डिंग द अक्यूज्ड टू द कोर्ट फॉर ट्रायल। सो वन way is that after completion of investigation, police will file a charge sheet and forward the accused to the trial. पहली है कि चार्ज शीट फाइल होंगी और अक्यूज को ट्रायल के लिए सबमिट किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। बाय सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट दैट इज नॉट सेंडिंग अप द अक्यूज्ड एट ऑल फॉर सच अ ट्रायल। या फाइनल रिपोर्ट एक भेजने का है लेकिन उसको ट्रायल के लिए नहीं भेजना है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एविडेंस नहीं मिले उस पर्सन के अगेंस्ट में, तो उस सिचुएशन में भी पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद, एंड दैट इज कॉल्ड अ फाइनल report. So if the IO had already sent up an accused and if he subsequently did not want the accused to be charge sheeted due to lack of evidence, he could send a report to the magistrate to discharge the accused from the case. Suppose if there is no evidence found against the accused person and if there is no evidence, charge sheet cannot be filed against the accused person. So hence the police officer can send the रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट टू डिस्चार्ज द अक्यूज्ड फ्रॉम द केस। तो जब कभी भी अगर कोई अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उस अक्यूज्ड की डिस्चार्ज रिपोर्ट सेंड करता है मैजिस्ट्रेट के पास। अब सेक्शन 173 व्हाट एग्जैक्टली मींस। So section 173 deals with report of police officer on completion of investigation. So every investigation shall be completed without an unnecessary delay. That is a subsection 1 of section 173. So whenever the police investigating a matter, according to section 173 subclause 1, police shall complete an investigation without unnecessary delay. तो पुलिस को without delay, unnecessary delay के चार्जशीट फाइल करना होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होती है। 173 सब क्लॉज 1A, द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू रेप ऑफ चाइल्ड मे बी कंप्लीटेड विद इन 3 months. सपोज इफ द ऑफेंस इज अ रेप ऑफ चाइल्ड, then if the police is investigating such a matter, the directives are there under section 173 subclause 1A that the police may complete that particular investigation within 3 months. तो अगर इन्वेस्टिगेशन किसी बच्चे के रेप से रिलेटेड है तो उसका इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा सेक्शन 173 सबक्लॉज 1A में प्रोवाइड किया हुआ है। सबसेक्शन 2, as soon as it is completed, the officer in charge of police station shall forward. जैसा ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड करेगा क्या, द नेम ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के नाम, मतलब किसने इंफॉर्मेशन दिया था, अक्यूज्ड कौन कौन है, द नेम ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट, द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की नेचर क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन के बेस पे इन्वेस्टिगेशन मैटर किया हुआ है, थर्ड द नेम्स ऑफ पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द केस, so the person who appears to be acquainted with the case, the name of those persons should be attached along with the police report, along with the charge sheet. तो चार्ज शीट में जो विटनेसेस है जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है पुलिस ऑफिसर ने अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में, तो ये पर्सन उस केस के बारे में जानकारी रखती है, तो चार्ज शीट में पुलिस रिपोर्ट में उन पर्सन के नेम भी आना जरूरी है। फोर्थ वन इज whether any offense appears to have been committed and if so by whom, चार्जशीट में यह भी आना जरूरी है कि ऑफेंस कुछ हुआ क्या और हुआ है तो किसने किया, दैट इज। एंड नेक्स्ट वन इज वेदर अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, अक्यूज्ड को अरेस्ट हुई या नहीं हुई यह भी चार्जशीट में मेंशन करना जरूरी है। वेदर ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड, अगर अरेस्ट हुई तो उसको बेल पे छोड़ा गया क्या, दैट फैक्ट मस्ट बी मेंशन इन चार्जशीट। वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जाम ऑफ वुमन हैज बीन अटैच्ड, तो फॉर एग्जाम्पल अगर रेप का ऑफेंस है या वुमन के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस है तो उस सिचुएशन में उस वुमन की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अटैच की हुई है या नहीं की हुई है ये मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज वेदर द मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ द वुमन हैज बीन अटैच्ड वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 टू सेक्शन 376 डी, तो रेप से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है तो उस सिचुएशन में उस वुमन का जो विक्टिम है रेप की उसका मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अटैच किया है या नहीं किया है, दैट फैक्ट मस्ट बी मेंशन अंडर चार्जशीट। नाउ सबसेक्शन 2 सेकंड, द ऑफिसर shall also communicate as prescribed by the state government the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of offense was first given। तो यहां पर वो भी मेंशन करना जरूरी है कि suppose if the informant has given information to the police officer, then on the basis of such information provided by the informant, what action police had taken, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया इंफॉर्मेशन आने के बाद, इंफॉर्मेंट ने जो इंफॉर्मेशन दिया ऑफेंस से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया ये भी कम्युनिकेट करना जरूरी है मैजिस्ट्रेट को along with the report under section 173। now section 173 sub clause 3, where a superior officer of police have been appointed under section 158, the report shall in any case in which the state government by general or special order so directs be submitted through that officer, and he may, pending the order of the magistrate, direct the officer in charge of police station to make further investigation। so whenever any superior police officer has been appointed under section 158 of CRPC as per the direction given by the state government, then the report under section 173 should be submitted by or through that particular officer only, that superior officer only, and if the order of magistrate is pending regarding that particular matter, then such superior officer can direct the officer in charge of police station to make further investigation। तो ध्यान रखिए सब सेक्शन 3 में क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी सुपेरियर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करती है सेक्शन 158 में, तो रिपोर्ट सेक्शन 173 की जो रिपोर्ट है चार्जशीट भी वही सुपेरियर पुलिस ऑफिसर सबमिट करेगा, और अगर उससे रिलेटेड मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर कोई पेंडिंग है तो उसके दौरान वो सुपेरियर ऑफिसर अपने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी, डायरेक्शन भी दे सकता है। सबसेक्शन 3। नाउ सबसेक्शन 4, whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit। So whenever the magistrate receives a report under section 173 and if the accused has been released on bond, then such magistrate is having a power to cancel and to discharge such a bond and make any order
एज ही थिंक्स फिट। तो जब कभी भी मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आएगी, चार्जशीट फाइल होंगी या पुलिस रिपोर्ट पुलिस फाइल करेगा सेक्शन 173 में, और जैसा ही वो रिपोर्ट रिसीव करेगा और मजिस्ट्रेट को ये पता चला कि अक्यूज्ड बेल पे छूटा हुआ है, तो मजिस्ट्रेट उसकी बेल को डिस्चार्ज भी कर सकता है या जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट को लगे वो ऑर्डर वो पास कर सकता है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 173 सब क्लॉज 5। When such report is in respect of a case to which section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report all documents or relevant extract thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the magistrate during investigation। अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन 170 सीआरपीसी के सेक्शन 170 में अगर पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड की हुई है मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट along with the report all documents or relevant extract thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to magistrate during investigation। तो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ, चार्जशीट के साथ उस पुलिस ऑफिसर को बाकी डिटेल्स भी, बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी भेजना पड़ेगा। अगर सेक्शन 170 में केस, अगर सेक्शन 170 से रिलेटेड अगर कोई केस है, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ ऑल द पर्सन हुम द प्रोसिक्यूशन प्रोपोजेस टू एग्जामाइन एज इट्स एविडेंस। तो रिपोर्ट के साथ वो जो सेक्शन 161 में जितने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए वाले हैं किसी विटनेस के, वो स्टेटमेंट भी पुलिस रिपोर्ट के साथ सबमिट करना जरूरी है। देन subsection 6, if the police officer is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject matter of the proceeding, or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is inexpedient in the public interest, he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reason for making such a request। अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173 सब क्लॉज 6, अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि एक आधा स्टेटमेंट है जो कि सब्जेक्ट मैटर से रिलीवेंट नहीं है या रिलेटेड नहीं है, या जिसका डिस्क्लोजर अक्यूज को करना इसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, वो चाहे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो या पब्लिक इंटरेस्ट में हो, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये फैक्ट का अक्यूज को डिस्क्लोज करना, ये डॉक्यूमेंट अक्यूज को देना जरूरी नहीं है, तो उस तरीके की रिक्वेस्ट वो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को करेगा कि ये कॉपी अक्यूज को नहीं दी जाए। समझ रहे हो, ये रिक्वेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। नाउ सेक्शन 173 सब क्लॉज 7, वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस फाइंड्स इट convenient so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the documents referred to in subsection 5। अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है और पुलिस ऑफिसर को कन्वीनियंट हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ही में फर्निश टू द अक्यूज कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर के पास आए वो पूरे डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अक्यूज को वो प्रोवाइड करेगा। सबसेक्शन 8, nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offense after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate, and whereupon such investigation the officer in charge of the police station obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed, and the provision of subsection 2 to 6 shall, as far as may be apply in relation to such report or reports as they apply in relation to report forwarded under subsection 2। तो जब कभी भी फॉर एग्जांपल अगर पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 में रिपोर्ट अगर फाइल कर भी दिया कोर्ट के सामने, और उसके बाद अगर पुलिस ऑफिसर को कोई नए एविडेंस या कोई नया ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलते हैं, तो नए एविडेंस के बेस पे वो और एक रिपोर्ट तैयार कर मैजिस्ट्रेट को भेज सकता है। ये उसका पावर है, मैजिस्ट्रेट उसको एक्सेप्ट करेगा विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। वो सब चीजें नए एविडेंस के बेस पे दूसरी रिपोर्ट, फर्दर रिपोर्ट तैयार करके वो मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। और रिपोर्ट कैसी तैयार करेगा, एज अर्लियर जैसा हमने सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 to 6 डिस्कस किए, उसी तरीके से रिपोर्ट तैयार करके मैजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है पुलिस ऑफिसर।
That is the provision of section 173. Probable question section 173 पे है. In submitting the final report under section 173 of CRPC, the investigating agency is obliged to seek the opinion of a public prosecutor, can be compelled by the court to seek the opinion of a public prosecutor, has to carry out a combined operation with the public prosecutor, neither A nor B or C. तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ. तो सब फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ओपिनियन लेना पड़ेगा, ना तो कोर्ट ये कहेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ओपिनियन लो, ना तो कोई कंबाइन ऑपरेशन होगा. तो ये तीनों भी ऑप्शन गलत है. सो नाइदर ए नॉर बी और सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. Another probable question is the investigation in relation to rape of child may be completed within 1 month, within 2 months, within 3 months, within 6 months. तो हमने ऑलरेडी देखा सेक्शन 173 सब क्लॉज 1A डील्स विद whenever the investigation relating to the rape of any child, it may be completed within 3 months. तो correct option is third, 3 months. तो third is the correct option, 3 months. So these are the provision of section 173 which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.